Namaste. A very good evening and a warm welcome to one and all. Like every year, we are gathered here to pay our tribute to Gora Ganguly, one of the founder members of Cinemontage. Today, that is 12th December, is his birthday, and I take this opportunity to pay tribute to Gora Ganguly. Now I would like to invite Mr. Fadnavis, Mr. Ramesh Borpute, Ms. Ranjana Pathak, Mr. Ravindra Pandarinath, Mr. Prafulla Shiledar to light the lamp and to pay floral tribute to Gora Ganguly. Thank you. Now I would request our today's speakers and guests, Shri Ravindra Pandarinath and Shri Prafulla Shiledar, to kindly join us on the dais. I would request both of them to take their seats on the dais. So today we are going to discuss about cinema in my life. So I am associated with Cinemontage since 7 years now. Before that, cinema was all about action thrillers and Bollywood romantics for me. So, with no exposure to the world cinema or classic cinema, so I knew nothing about the world cinema before that. And when I started attending these screenings and some of the talks about how to appreciate world cinema, so I thought, how would I be able to understand these classic cinemas? But then when I started attending these screenings, slowly I got to know that this is also a very interesting part of cinema. Honestly, cinema was introduced to me by my father. So I remember watching this, one of the James Bond series movie, The World Is Not Enough, long back in 2000. And then he only started introducing me to the series of these Hollywood thrillers and other action cinema. Anyway, so when I started attending these screenings, I started developing a taste for pure classic cinema. And now I prefer this cinema rather than the mainstream films. We live in a society of, or you can say a nation of movie buffs. So cinema definitely influences the society. Cinema is an extremely powerful and popular source of entertainment. Cinema is also a collective experience of different art forms. And I am very glad to be associated with Cinemontage
who is making efforts towards celebrating this art, celebrating the real cinema, and making the classics available for people like us and to appreciate these classic movies. Today we are going to listen to the two eminent personalities about cinema in their lives, Shri Ravindra Rukmini Pandarinath and Shri Prafulla Shiledar. So without further ado, let us start the program. But before that, I would like to present a formal introduction of our speakers. Shri Ravindra Rukmini Pandarinath, a writer, activist and editor, closely associated with various social movements and organizations like Chhatra Yuva Sangharsha Vahini, Narmada Bachao Andolan, Men Against Violence and Abuse, and Sevagram Collective. Former managing editor, Science for Villages, editor, Azaza Sudharak, presently chief editor of Marathi Quarterly, Sarvankash. Writes mostly in Marathi. His published books include Khelghar, a highly acclaimed novel, Gori Gori Pan, a collection of stories, Gulzarancha Kavita, translation of Gulzar Sahab's poems, Ishwar Mala Gungunto, Deep Raga Pramane, translation of Yuva Gyanpit award-winning Hindi poems by Babusha Kohli, and Thodi Si Zameen Thoda Asaman, a book on poetic appreciation of Hindi film lyrics. He also writes on public health issues, current socio-political developments, philosophy of science, Gandhi and RSS. I would like to invite Shri Jayashankar to felicitate Shri Ravindra Rukmini Pandarinath. I now request Ravindra sir to present his views about cinema as in his life. नमस्कार। आज गोरा गांगुली जी के स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है, क्योंकि सिनेमोन्टाज और गोरा इनके साथ अपना रिश्ता बने ये मेरी बहुत पुरानी ख्वाहिश थी। और लेकिन जब मैं 1979 तक मैं नागपुर में था, तब तक सिनेमोन्टाज की शायद शुरुआत ही हुई होगी, मुझे उसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। मैं बाहर गया नागपुर से, उसके बाद में इतने लोगों से मैं सिनेमोन्टाज की बात सुनता था, गोरा की बात सुनता था कि मुझे लगता था यार इन लोगों से मिले, मैं अटेंड करूँ, मैं कुछ चीज़ें समझूँ। लेकिन जब तक मैं यहाँ पर वापस आ गया तब तक तो गोरा जी से भी मुलाकात नहीं हो पाई, और प्रदीप जी से मुलाकात बीच में हुई थी, उन्होंने एक बार यहाँ पर मुझे बुलाया भी था। मुझे लगता है कि हमें लगता है कि रिश्ते जुड़ने चाहिए, लेकिन वो रिश्तों का जुड़ना क्या होता है कि वो रिश्तों के जो फूल है वो हमारी चाह के अनुसार नहीं खिलते। कब कहाँ पर बीज चला जाए उसका, कौन से मौसम में वो खिले और अपनी झोली में आकर फूल गिरेगा वो बोल नहीं सकते। जब कभी उसको आता है वो कबूल कर सकते हैं, तो हमने उसको कबूल किया है इस बात को, और इस बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि फिल्म को लेकर, सिनेमा को लेकर मेरे मन में क्या बातें हैं। क्या होता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ही रहता है फिल्म, उसके बारे में अलग से सोचते नहीं हम लोग कभी, तो अपने आप को ढूंढना रहता है, खंगालना रहता है, अंदर से सब चीज़ें निकालनी होती है। तो वो सब करने का अवसर मुझे आज आपने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात जब फिल्म की याद करता हूँ तो मुझे पहले ये बता दें कि मैं ऐसे परिवार से और ऐसे परिवेश में था जहाँ पर फिल्म देखना तो कोई अच्छी बात मानी नहीं जाती थी, तो अच्छे बच्चे फिल्में देखते थे उस जमाने में। फिर बाद मुझे याद आ रहा है कि थोड़ा बड़ा हुआ, मैं हम कि 10 से 20 का एज का मैं देखता हूँ, 1965 से 75 का अगर टिकट देखा जाए तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में तभी आ रही थी। संगीत का तो क्या कहें, वो तो स्वर्ण युग था, और नई नई प्रयोग हो रहे थे। लेकिन 70s के बाद में जो पूरा नया उछाल आया सामाजिकता का, और पूरा जो रिबेलियन आ गया, जो फिल्मों में भी दिखा अपने को, वो सब वक्त। लेकिन मेरा अवस्था पे बोलता था कि मैं जब पहले जिस गांव में मैं रहता था उस गांव में टूरिंग टॉकीज हुआ करती थी, गांव के बाहर जो पूरे खुला आसमान रहता था, तो वहाँ पर टॉकीज जो होती थी वहाँ पर 3 तरह की फिल्में आती थी। एक तो महान धार्मिक, महान सामाजिक और मारपीट से भरी हुई,
थे, तीनों उनके एडवर्टाइजमेंट थे, वो आते थे पूरा बजाते थे। तो महान धार्मिक जैसे संपूर्ण रामायण जैसी फिल्में थी उसके अंदर। महान समाज में वो तो रोना धोना रहता था, मैं चुप रहूंगी वगैरह वगैरह फिल्में उसके पहले रहती थी। और मार्ट काट से दोनों फिल्में तो हम लोग देखते भी नहीं थे। तो बाद में मैं कुछ स्कॉलरशिप मिली, मैं स्कूल में गया, वहाँ पर कुछ फिल्में देखने को मिली। लेकिन जो असर रहा मुझे लगता है कि पहला जो असर फिल्मों का, कि इतने अच्छी फिल्में उस जमाने में थी जो बाद में मैंने देखी, तो मुझे याद है कि वो जो महान धार्मिक सिनेमा में क्या याद था कि यानी याद संपूर्ण रामायण से इसकी, कि वो एक राम और सीता वनवास में है और सीता को रावण भगा कर लेके गया है, और उसके अंदर क्या कलात्मकता का प्रतीक क्या होगा। तो राम जाकर उधर राम और लक्ष्मण घूम रहे हैं, तो वहां पर वो फल देखते हैं, तो राम को राम देखो सीता फल, और अशोक बंधु में सीता कहती है किसी वो दासी से देखो राम फल, जिससे वो फल को देखकर मुझे याद आ रही है। दूसरे मुझे अभी यानी दिमाग में उस वक्त उस उम्र में क्या कराया जाता है, वो कोई शेख मुख्तार और दारा सिंह वाली फिल्में रहती थी उसके अंदर, तो कोई तो ऐसा हीरो बहुत तगड़ा, वो हीरोइन के सामने आके कहती है देखो मैं तुम्हारे गुलाब का फूल लाई हूँ, नहीं मैंने देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है, मैंने क्या लाया है, मैंने मोहब्बत का फूल। तो मोहब्बत का फूल, ये तो गुलाब का फूल है, वो कहता है। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसे कि उसके गोभी का भी फूल होता तो उसको कुछ नहीं लगता था। तो वो प्रेम और जो सटल चीजें थी फिल्मों में, वो उसका पहला मेरा जो प्रारूप मैंने जो देखा उस तरह का बिल्कुल अलग तरह का था। स्कूल में गया, स्कूल में हर शनिवार को स्क्रीनिंग होती थी फिल्मों की, और जो हमारे लाइब्रेरियन थे वो बेचारा दिलीप कुमार का एक बहुत बड़ा शागिर्द था, तो चुन चुन कर पुरानी फिल्में लाता था, उनसे वाले फिल्म अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन संस्कार होते लगता है कि 2 आंखें 12 हाथ, पड़ोसी, ये सब फिल्में उस जमाने में हमने देखी। नौरंग देखी थी, मैं याद है कि नौरंग इतना ना ऐसे जब मैं करता था उस उम्र में भी, वो संध्या को देखना वो कोई हमें लगता कि बहुत बड़ी पनिशमेंट है, वो डांस वांस में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो आधा है चंद्रमा राता जो कहा है वो जो गाना, वो इतना दिल के अंदर जाकर बैठा कि कई सालों तक फिर वो याद आता रहा। तो ऐसे सब चीज़ थी। बाद में हम लोग बड़े हुए, फिर यहाँ पर कॉलेज के लिए आए, फिर नागपुर में रहे, यहाँ पर सब उम्र के साथ में जुड़े, और बहुत सारी चीज़ें उसके बाद में फिर बॉम्बे में गए। लेकिन फिर भी ये दुख रहा कि सिनेमोंटा जैसे किसी इसके साथ में जुड़े नहीं, इसलिए वर्ल्ड सिनेमा की पहचान उसको एक अध्ययनशीलता उसके साथ नहीं हुई। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक साहित्यिक के रूप में, एक समझने वाले व्यक्ति के रूप में सोचना परखने का दौर चलता रहा। तो मैं सिर्फ उसके अंदर कहूँगा कि इसके अंदर क्या किया क्या, मैं तो बहुत संक्षेप में बात में कहूँगा, और बाकी कुछ चीज़ें मैं थोड़ा डिटेल में बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने क्या सोचता हूँ, तो मैंने कहा कि एक तो मेरा ये रहा कि मैंने कभी शोले नहीं देखी थी, और मेरे मन में क्या मन कि मैं शोले देखूँ, इतने सब तमाम इसके बाद मुझे वो कभी मन में ये नहीं हुआ कि मुझे शोले देखनी है। मुझे कहा वो मेरे मन में चुना होता है, देख रहे भाई क्या इतनी बड़ी बात, उसके अंदर इतने सारे लोग बात करते हैं, उसको मुझे जरूरत नहीं लगती उसको देखने की, या कोई संगम जैसी फिल्म उस वक्त बहुत चलती थी, तो मुझे अंदर से वो इच्छा नहीं हुआ देखने की, तो मुझे लगा वो मेरा चुनाव अपना हो जाता। फिर दूसरी बात मुझे लगता कि उस वक्त बहुत सारा वो वातावरण रहता था कि फिल्मी हीरो हीरो के पीछे दीवाना हो जाना, फिर उनकी गॉसिप के ऊपर इतने मैगजीन्स निकलते थे स्टार्टर्स से लेके, तो उसके अंदर भी कभी रुचि कभी नहीं रही उसके अंदर। और फिर भी जाकर देखता हूँ तो अभी भी मुझे याद कौन आते हैं, कौन अच्छे लगते रहते हैं, तो पहले संजीव कुमार अच्छा, कभी अमिताभ का मैं कभी फैन नहीं, लेकिन संजीव को हमेशा याद करता, फिर संजीव रहे, फिर नसीर रहे, आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी रहे। लेकिन वैसे अगर इसमें देखा तो वहीदा की बहुत सारी यादगार फिल्में देखी, वहीदा और स्मिता उस जमाने में, राज से लेकर फिर दीप्ति या तब्बू संगीता, इनको पसंद किया, बहुत सारा उनके बारे में देखा सोचा। और ये जो माध्यम है तो निर्देशक का माध्यम है, तो उसके अंदर से कुछ क्लासिक फिल्में देखने को मिली, जो कोई मध्यम धारा वाली फिल्में हैं, जो गुरुदत्त हो रहे, विमल रॉय रहे, वो भी देखी, पत्थर पंचाली भी देखी, और कुछ मान लो डॉक्टर जिवागो उससे लेके शतरंज की खिलाड़ी, ऐसे इतने सारे फिल्मों का इतना सारा कॉम्प्लेक्स असर अपने ऊपर है, तो उसको बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लेकिन क्या चीज़ें उससे मेरे समझ में आ रही है, उसको मैं कुछ बात में आपने रखूँगा कि एक ज़माना था कि 1992 में जब वो बम्बई में बहुत बड़े वो जो बॉम्ब विस्फोट के बाद जो दंगे हुए, और जो हमें लगा कि अरे जो पूरा सपना समाज टूट गया था, कि हमें लगता था कि 75-77 में हम लोग जेपी मूवमेंट को लेकर साथ में निकले थे, और दुनिया को बदलने की जो एक मन के अंदर जो जुनून था, और तमाम मुश्किलों के बाद भी लगा था कि कुछ तो भी कर रहे हैं, कुछ अलग दुनिया आगे जा रही है। और सबसे बड़ा झटका जब लगा कि यार इतनी बम्बई जैसे शहर में दंगे होते हैं, और वो जब भुगता उसको जो
स्मशान जैसे पूरी शांतता थी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा था। और फिर धीरे धीरे जो बातें शुरू हो गई तो अपने आसपास के लोग आके बड़े प्यार से बता रहे थे, शौक से बता रहे थे कि हमने कैसे लूटी चीजें। तो उस माहौल में बॉम्बे फिल्म जब आई तो लगा कि अरे भाई हमको एक मन में ऐसा कि बॉम्बे फिल्म के बाद माहौल जैसे बदल गया है। कुछ तो भी लगा कि हाँ फिल्मों में ताकत होती है, कहीं ना कहीं वो प्यार मोहब्बत का जो असर होता है वो आता है। तो भले ही वो गलत जुनून लोगों के मन में हो, लेकिन शायद फिल्म का असर होता होगा उसके अंदर। तो ये सब वो भी उसके बाद में तो बहुत सारा अभी हम वहाँ से लेके अभी तो नवो युग तक आ गए हम लोग। तो अभी हम लोग इतने अभी सोचने में नहीं रहे, रोमांटिज्म नहीं रहा। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो जो महसूस करना और सोचना, जो हमारे इसमें हमेशा ये डायकोटोमी रहती है कि हमें कोई लगता है कि सोचना जरूरत है या महसूस करना जरूरत है। फिर हम लोग ये कहते हैं सामाजिक है ये चीज या राजनीतिक है या व्यक्तिगत है या सामूहिक है। तो फिल्मों को, कला को देखने के नजरिए को ये जो है ना डायकोटोमी जो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। मुझे लगता है कि यहाँ ट्रांसजेंडर की डायकोटोमी उससे बाहर आ गया हूँ मैं। तो मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, वेरी मच पॉलिटिकल पर्सन। मैं एक सोचने वाला आदमी हूँ, महसूस करने वाला आदमी हूँ, मैं एक कथाकार हूँ, लेखक हूँ। तो उसके बाद मुझे क्या लगता है कि किस तरह से क्या ताकत क्या होती है, फिल्में क्या करती है, मैं कहानी क्यों लिखूं आज के दौर में जब इतना जुनून बढ़ गया है, लोग दूसरे को मारने के लिए, जो कल मेरा पड़ोसी था उसको मारने के लिए मैं आमादा हो गया हूँ। तो ऐसे दौर में फिल्म बनाने का क्या मतलब होता है या कहानी लिखने का क्या मतलब होता है, कविता का क्या मतलब होता है। तो अब ये तो रोमांटिज्म में रहा कि फिल्मों से क्रांति होती, नहीं होती। फिल्मों से किसी कला से क्रांति तो होने वाली नहीं है, लेकिन ये सब कला बहुत सटल रूप से अंतर मन को आंदोलित करती है, उस पर असर करती है। और वो इतने सहजता से करती है, इतने सटल तरीके से करती है, नजाकत से करती है कि वो बाहर से दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है उसकी सबसे बड़ी ताकत वो है, मुझे लगता है कला की ताकत वो है कि आपके अंतर्मन को इस तरह से छू जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता। और उसके अंदर सबसे रिफाइंड फॉर्म है जो फिल्म, उसके अंदर इतने सारे कला रूपों का समावेश होता है, इसलिए उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे लगता है कि इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को। और कई अलग अलग तरह की चीज़ें फिल्में मुझे अच्छी लगती हैं। तो उसको पहले समय नहीं होगा कि एक परिभाषा है, मुझे लगता है फिल्म को कलाकार करने की कोई एक व्याख्या या एक परिभाषा करना अन्याय होगा उसके ऊपर। कोई फिल्म है, कोई गाना है, कोई चीज़ है जो मुझे स्लोगन की तरह या गन की तरह हिट करता है। साहिर का गाना होगा जो कोई परचम जैसे कोई गाने की अगर 2 लाइनें है ना, उसका आप बैनर बना दीजिए, बिल्कुल इस तरह की ठोस बातें आपके दिल के आर पार बोली जैसी मिली जाएगी। उसका एक असर है। नवजोत विशाल की कविता को लेकर अगर बात करें या साहिर की कविता को या फैज की अगर हम सुनते हैं फैज को, किसके अलग अलग से नैयारा दूर को मैं सुन रहा था कि फैज को जेल में लेकर जा रहे थे लाहौर के सड़कों से, ताकि में बिठा कर उसको हॉस्पिटल जा रहा था, तो मीडिया बन दीजिए उसको और लेके जा रहे, उसके अंदर फैज ने जो नज्म लिखी है उसका जो असर होता है तो वो कुछ अलग होता है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है, कोई शब्दम की तरह अपने मन को, जो मन की भूमि जो है या उस ओस है, वो ओस है, शब्दम है, जो उस दूब को गीली करती है, भूमि को गीली करती है, धीरे धीरे उसको मुलायम सा बनाती है। वो भी असर में लगता है, वो फिल्म का असर होता है। इससे भी अभी जो 2018 में फिल्म शायद अक्टूबर फिल्म थी, क्या है उस फिल्म में, क्या हो रहा है उसके अंदर, तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। एक छोटी सी घटना है, लेकिन उसके अंदर जो लोग हैं उसके मनो के मन के धरातल पर क्या क्या धीरे धीरे सब असर होता है। उसमें जो बताया है हर सिंगार के फूल जैसी वो फिल्म है, तो वो फिल्म शायद हर सिंगार के फूल जैसी हो, तो हर सिंगार के फिल्म की सुंदरता अलग है और कोई गन शॉट या स्लोगन की भी सुंदरता अलग है, लेकिन अपनी अपनी सुंदरता है। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ है उसके अंदर, कि ये जो चीज़ है कि जो मुझे लगता है कि अच्छी फिल्म है, अच्छी कलाकृति है, वो एक तरफ अपने मन को भी समृद्ध बनाती है, अच्छा इंसान बनाती है अपने आप को। वो कहीं ना कहीं अपने समाज से जुड़ी भी होनी चाहिए चीज़ें, कुछ सरोकार होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो अच्छी उसमें कला भी होनी चाहिए। दोनों चीज़ें बहुत जरूरी है। तो किसी एक ही तरह से उसको देखना मुझे वो गवारा लगता है, लगता कि नहीं। और जो कुछ होता है उसका असर अपने आप हो होता ही है। तो वो कभी प्यासा जैसी फिल्म रही, उसके बाद में आई गुलाल। मिलता कि आज का जो गुलाल है, तो उस जमाने में जो प्यासा था, प्यासा उसने लिखी इसलिए कि
उस जमाने में विद्रोह की भाषा थी। विद्रोह युग धर्म था कि बदलना है, समाज को बदलना है, अंदर से लग रहा था। आज की पीढ़ी के सामने जब कोई रास्ता ही नहीं है, और तीनों इफेक्ट है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। आपको इसी समाज में रहना है, इसको आप बदल नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जुगाड़ करना है। ऐसे वक्त वो जो विद्रोह आता है उसका नाम गुलाली होगा उसके अंदर। तो अलग अलग तरह से वो आकार लेगा उसके अंदर, और उस तरह से हमें लगता है कि हर नई चीज़, रोज नई नई चीज़ें आ रही है, उसको हम सामने देखते हैं। मजा की बात यह है कि मेरी बेटी और मेरा जावई दोनों भी फिल्मों से जुड़े हैं, तो वो कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। से मतलब सुनी कहती कि क्या फायदा है, मैं लिखती हूँ लेकिन पता ही नहीं चलता, कुछ मुझ पर आता ही नहीं है, मुझ तक कुछ पहुँचता ही नहीं है। अगर कुछ अगर हीरो हीरो की बात अलग होती है, राइटर को क्या मिलेगा उसके अंदर। तो मुझे लगता है फिर भी ठीक है, अगर वो कोई फिल्म में डायलॉग लिखती है, उसके अंदर किया था क्या करते, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो मराठी फिल्म है उसके अंदर जो मैं जब देखता हूँ कि गांव के छोटे गांव में जाता हूँ, वहाँ पर किसी लड़की के मुंह से वो डायलॉग सुनता हूँ, या प्रेम की परिभाषा इतनी सटल और अच्छी हो सकती है, हेल्दी हो सकती है, तो ये जो मुझे लगता है कि ये जो असर करने वाली बात है ना, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल दूर दूर तक असर होता है। मैं उसको बोलता हूँ तो ये पता नहीं लगता, लेकिन पॉपुलर कल्चर बहुत महत्व का है। और आज मुझे लग रहा है कि सब चीज़ें छोड़कर फिल्म के तरफ एक पॉपुलर कल्चर के रूप में देखना मुझे आज सबसे महत्वपूर्ण लगता है। क्योंकि एक जमाने में जो लोकगीत थे, लोक परंपरा थी, उसकी भूमिका फिल्मों ने ली। तो इसलिए फिल्में किस तरह का असर लोगों पर करती है, उससे मुहावरा कैसा बदलता है, समाज का समझ और सोचने का तरीका कैसा बदलता है, वो देखना, उसको डॉक्यूमेंट करना, ये मुझे एक अच्छा लगता है। इसलिए उसमें से एक छोटा हिस्सा मैंने अपने लिए ले लिया है, वो है फिल्म गीत। तो मैं कहता फिल्मी गीत को मैंने चुना है क्योंकि भारतीय सिनेमा की ये विशेषता है। किसी शायद ही दूसरे देश की विशेषता होगी, लेकिन भारतीय फिल्म, फिर वो तो हिंदी रहे, हॉलीवुड अपने हिंदी फिल्म से तो ज़्यादा वो प्रभावित है, लेकिन पूरे भारतीय फिल्मों में गीत का बहुत अपना महत्व रहता है। और वो मुझे लगता है कि कई बार वो फिल्म का इसेंस जो है, उसका जो पूरा गागर में सागर जो रहे, वो गीतों में आ जाता है। और इसलिए उस गीतों को हमने बहुत संजीदगी से देखना बहुत जरूरी है मुझे लगता है। क्योंकि मुझे अभी याद आया, इसके अंदर कोई प्रोग्राम भी करते हैं हिंदी फिल्मों के गानों का पोएटिक एप्रिसिएशन को लेकर करते हैं, तो उसके अंदर मैं बार बार बोलता हूँ मैं कि रामचंद्र गुहा जी से पूछा गया था कि उनको एक इंटरव्यू पूछा था कि भारत जो देश है उसके अंदर इतने सारे अंतर विरोध है, इतने कॉन्ट्राडिक्शन से इतनी विविधता है, उस सबके बावजूद तो कैसा टीका है, पूरे दुनिया पर तो असर होता है। तो गिनाते हैं, बोलते हाँ, एक तो पहली बात यहाँ का सामान्य आदमी जो है उसका सयानापन सबसे बड़ी बात, यहाँ का संविधान, यहाँ का कॉमन मार्केट। और वो फिर कहते हैं, और हिंदी फिल्में, वो कहते हैं जब तक देश के लोग हिंदी फिल्में देखते रहेंगे, हिंदी फिल्मों के गीतों को गुनगुनाते रहेंगे, तब तक ये देश टिक रहेगा। तो मुझे लगता है फिल्मों के गीतों की ताकत उसमें हमें दिखाई देती है। और इसलिए आदमी जब पैदा होता है, वहां से लेकर स्मशान जाता है, उसके पूरे सफर में एक गीत उसका साथ देते हैं। क्योंकि मुझे ऐसे लोग मालूम है कि कैनिबलिस्ट लोग मालूम है कि जो अपने लेबर रूम में पुरानी फिल्मों के गाने बजाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके कानों पर पहला स्वर लता, आशा, रफी का रहे, तो बहुत सुस्वर रहे, तो शायद अच्छा रहेगा उसके लिए। तो वहां से लेकर हम लोग स्मशान जाकर भी जाते हैं, तो ये सब गीत अपने साथ में रहते हैं। फिर आप कहीं भी पैदा हो जाओ, कहीं भी बड़े हो जाओ, तो गीत आपका साथ देते हैं। और उसको अलग अलग भी लगता है कि उसका स्टैंड ऑन जिसका एक महत्व होता है। जैसे मैंने कहा कि वो नौरंग फिल्म शायद ही इसको याद होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अधूरे प्रेम का एहसास, क्योंकि ज्यादा तो अपन वही बहुत कम ही प्रेम है जो उड़ान भरते हैं, परवान चढ़ते हैं, जो अधूरा रह जाता है उसका जो एहसास है। तो वो जो कहता है आधा है चंद्रमा रात आधी, रहने चाहे तेरी मेरी बात आधी, उसके अंदर वो कॉन्टेक्स्ट छोड़ दीजिए कि वो प्रेयसी है, वो उसकी प्रतिभा शक्ति है या नहीं, तो मुझे लगता है कि उस पूरे को व्याख्यायित करता है, पूरा गीत अलग हो जाता है। जैसे बाकी फिल्म देख लीजिए, लेकिन प्यार किया तो डरना क्या, यह जो होता है अपना मुहारा बन जाता है ना भाई। हजारों लोगों ने अपने लव लेटर में लिखा होगा, क्योंकि वो तो पॉपुलर कल्चर का हिस्सा हो गया है उसके अंदर। तो जो समाज, जिस समाज में बहुत ही पुराने ढंग से चलने वाला समाज है, जो बहुत ग्रामीण हुआ करता था, जिसके अंदर बहुत सारे बंधन हुआ करते थे,
उस जमाने में कोई एकदम कहे प्यार किया तो डरना क्या, तो उसके अंदर विद्रोह आ ही जाता है उसके अंदर। या जिसे लगता है कोई जैसे आंधी जैसी बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत सुंदर फिल्म है, लेकिन उसके अंदर सब गाने सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें जो गुलजार साहब ने कहा है तो उसके अंदर पूरा प्रेम का भी आ जाता है, और फिल्म की बात है कि तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, क्योंकि है भाई तुम्हारे सिवा मैं जिंदगी तो जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, लेकिन तेरे बिना जिंदगी से शिकवा, लेकिन तू अगर नहीं रहे तो जिंदगी जिंदगी नहीं। यह जो पूरा आदि फिल्म की जो पूरी सेंट्रल आइडिया है उस गीत से सामने आती है। उसके बाद भी मेरा लगता है कई चीजें और होती है फिल्मों से, गीतों से बाहर आती है। एक तो मैंने कहा कि उसके अंदर बहुत अच्छा काव्य है, हमने शायद उसको बहुत नजरअंदाज किया है कि हमारे फिल्मों को जो पॉपुलर कल्चर है जिसने हमको कार्य करना सिखाया है कई पीढ़ियों को, हमारे प्रेम को, हमारे भावनाओं को जुबान दी है, या टूटने पर भी अगर जो होता है जो व्यक्त होता है उसको जुबान इन शायरों ने दिया। कौन लोग हैं वो? तो जिनका तो अदब की दुनिया में जिनका नाम बड़े प्यार से लिया जाता है, जो जान निसार अख्तर साहब रहे होंगे, कैफी आजमी, साहिर, मजरू, गुलजार, जावेद अख्तर, शहरियार, ज्ञानपीठ अवार्ड विनर सचिंदर है भैया, वहां से लेकर आज लोग बोलते हैं। लेकिन मुझे दुख होता है कि जो मेरी पीढ़ी के लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको सबको बोलते 60s में तो स्वर्ण युग था, उससे पहले में तो बहुत पहले सेकुलर बात करते रहे, लेकिन उसके बाद में 70s के आगे बढ़ती नहीं है। हमें लगता है कि 21वीं शताब्दी में सब खत्म ही हो गया है। अरे आज भी बच्चे, हम लोग उतने गानों में मेलोडी नहीं रही, और हम बार बार गाने नहीं सुनते, लेकिन कितना सुंदर गाने लिखते हैं। स्वानंद किरकिरे जैसा आदमी लिखता है जो है, या इरशाद काबिल, अरे भाई इसने पीएचडी की उर्दू में, उर्दू लिटरेचर में, उसके बाद वो गीत लिखा है। तो जिस ताकत से वो लिखता है उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आज के जमाने की भाषा आ रही है। तो मुझे एक लगता है कि दो चीजें मुझे सबसे ज्यादा उसके संदर्भ में रखनी है। एक तो मुझे लगता है कि जिस आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर हम लोग बहुत अपने नजदीक की बात है, भाई ये आइडिया ऑफ इंडिया बचा रहेगा तो हमारा देश बचा रहेगा। तो उसके अंदर कितनी आप सैकड़ों गाने देखते जाओ, जिसके अंदर जो कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब से लेकर सब चीजें उसके अंदर आती फिल्मों में, जो आज तक भी आती है। जैसे मुझे लगता है कि मैंने इसे कहा कि अभी रॉकस्टार जैसी फिल्म आई थी अभी किसी दिन, बहुत हिट फिल्म होगी इसके अंदर। तो मुझे उसकी खासियत ये लगती है कि उसके अंदर कौन कौन है उस गाने के अंदर, जो उसके अंदर हमने कहा है जो खुन खुन फाया खुन गाना जो है उसके अंदर, तो उसके अंदर तो क्या है, खुन फाया खुन में हमें लगता है क्या है उसके अंदर, क्या नहीं। तो जो अद्वैत का पूरा विचार जो है, जो पूरी भक्त परंपरा से आता है, वो मीरा रहे, वो कबीर रहे, वो तुकाराम रहे, वो सब में जो अध्यात्म, जो अद्वैत वाली चीज आई है, वो सूफी, वो कुछ अलग नहीं है। वो उस गाने में जो आता है कि यानी पहले क्या था, पहले क्या था, तो उसके अंदर जिस ने कहा कि पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नाम चीज भी नहीं थी, तो फिर ये चीज यहाँ पर आ गई। तो ये जब पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझ जैसा आदमी जो शायद ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, जो शायद धर्म में विश्वास नहीं करता है, लेकिन उसके मन को एक बात छू जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि आज की परिस्थिति, मुझे लग रहा है कि लड़ने की जो ताकत है ना, वो विवेकवाद से नहीं आती है। हमको जिंदगी ऐसी क्यों है, उसके सवालों के जवाब को आ जाएंगे, बहुत अच्छा एनालिसिस कर लेंगे कि आज क्यों भाई किसान अगर वो आत्महत्या क्यों कर रहा है, तो भाई हाँ फला फला इसमें देश में ऐसा हुआ, उसके बाद में इंटरनेशनल पॉलिसी ऐसी चेंज हुई, उसके कारण यहाँ के खेती के दाम इतने कम हो गए, और उस वक्त क्लाइमेट चेंज इन कारणों से, और इसलिए बारिश हो गई, इसके लिए उसको खेती कम आई, फसल कम आई और पैसा कम मिला। अरे लेकिन उससे उस आदमी को ताकत नहीं, उसको मैं समझा भी दूँ, उसको उसके साथ में लड़ने की ताकत उससे नहीं मिल सकती। तो लड़ने की ताकत अगर मिले, तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये चीज़ आगे रहने वाली है। पब्लिक ने कहा कि जो बात कर रहे थे, वो एक किताब है बेलारूस की, स्वेतलाना जी की किताब निकली चिरनोबिल प्रेयर्स, उस पर हमने कहा था कि भाई वो पढ़ते मुझे लगा कि वो जो जिन्होंने लाखों लोग उसके अंदर मारे गए और लाखों उसके बाद जिंदा रहे, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले वो राइटर लिखती है कि चर्च में भीड़ बढ़ गई है। पहले लोग तो कम आते थे, अब नास्तिक लोग भी चर्च में आने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे साथ में पहले तो एक हमारे हाथ में हथियार था मार्क्सिज्म नाम का, कि हम सब लोग कौन है तो हम आपको ऐसा अपने आप को आइडेंटिटी देते हैं। वो अगर खत्म हो गया, सोवियत यूनियन खत्म हो गया,
और कल मेरा जो दोस्त था वो मेरे पीछे अगर बोलने लगा कि तुम रशियन हो, मैं नशे की हूँ, मैं तुमको मार डालूंगा, उसका मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा? और उसको अगर ये जो साइंस की हमारे हाथ में तलवार थी, साइंस को लेकर हम सब करेंगे, उस साइंस ने लेकर वो जो चेरनोबिल बना दिया है, तो अब हम आगे कैसे जाएंगे? तो कोई नए भगवान की, किसी नए ईश्वर की हमें तलाश करनी पड़ेगी। और ये सब बातें दिमाग में आती जब मैं ये गाना सुनता हूँ। तो उसके अंदर मजे की बात ये है कि उसके अंदर ए आर रहमान ने उसको संगीत दिया है, इरशाद कामिल ने लिखा है, जावेद अली और मोहित चौहान ने गाया है। तो सभी और हर गाने जाते हैं इसमें मुझे भी पता है कि सबसे सुंदर जो हमारे प्रार्थना गीत है वो कोई रफ़ी साहब ने गाए हैं, नौशाद में उसको संगीतबद्ध किया है। तो इन सब में जो हमारी आइडिया ऑफ इंडिया है वो बहुत अच्छी तरह से झलकती है। तो मुझे उसके अंदर सिर्फ अभी बहुत समय तो नहीं है, तो मैं सिर्फ 2 उदाहरण दूंगा तो जो बहुत नज़दीक है अपने। एक तो लगता है स्त्री पुरुष रिश्ते को लेकर कल्चर को हम कैसे समझें इस बात को। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा धागा उसके अंदर है कि हम स्त्री पुरुष के नाते के रिश्ते को कैसे कहते हैं। और प्रेम की बातें तो बहुत सुंदर होती रहेगी, लेकिन जब प्रेम टूट जाता है, जब ब्रेकअप हो जाता है आपकी भाषा में, तो उसके बाद आप किस तरह से उस बात चीज़ को देखते हैं, उससे पूरा दौर आपके सामने आता है। एक दौर था सरगम फिल्म का जिसके अंदर ये कहते थे कि दोस्त दोस्त ना रहा, बहुत ही इफेक्टिव गाना, आज भी सुनते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उसका कंटेंट, उसका असर क्या हुआ है? वो जो दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, कहते कहते उस गाने का अगर आप फिल्म वो देखोगे, क्लोजअप देखोगे, तो वो जो राज कपूर की निगाह है उन सबको कटघरे पे खड़े करने वाली, खासकर वो औरत को, और वो दोस्तों कहते हैं कि अमानत एक थी जो प्यार की या था तुझको सौ पकड़, वो मेरे दोस्त तुम ही तो थे। तो अमानत, ये तो प्रेम में अमानत हो गई भैया, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखने वाली चीज है, तो बस आप दे दी थी और वहां पे मुझे कि वैसे के वैसे वापस कर दो। तो स्त्री की तरफ देखने का नजरिया और प्रेम को देखने का नजरिया भी जो है वो वहां से शुरू होता है। उससे जो पोजिशन आता है, तो लाखों लोगों ने जो अपना पूरा गुस्सा निकाला होगा, क्योंकि उन्होंने उसी से इंटरनलाइज भी किया है और उस चीज को परिभाषित भी करता है। उसने सबने लिख के भेजा होगा अपने दोस्तों को, अपने महबूबाओं को, और वहां से लेकर जो परंपरा चलती है, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, इन गानों ने जिस तरह का कल्चर लाया है, जो आज भी हम गांव गांव में जाते हैं, बच्चों के साथ स्कूल के बच्चे से बात करते हैं, इतना ज्यादा पोजिशन भरा है। तो हाँ, ये अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होने दूंगा। और वो फ्रेंडशिप मांगते हैं, फ्रेंडशिप मांगने की बात होती है, और फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि बस तो मैं तेरा कुछ भी ना सुनूंगा। और इस कारण आज 20-25 सालों में देखिए गांव से लेकर शहरों तक कितनी चीज़ों से हिंसा हुई है, क्योंकि वो संदेश जाता है जो सीधा अंदर जाता है। और इस बैकग्राउंड को देखते मुझे लगता है फिर साहिर याद आता है, जो कहता है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। और बहुत ही गंभीरता से वो कहता है कि कितना सुंदर वो कहता है कि वो वापस आना जिससे अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ लेकर भूलना अच्छा। तो इतनी मैच्योरिटी की बात उस जमाने में भी होती थी, और वो लोगों को अपना बहुत बड़ा नजरिया देता था, देखने का तरीका देता था, और शायद वो समझ में ना आता हो लेकिन वो देता था, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मुझे लगता है इसका बाद में मुझे लगता है कि ये वहाँ पर खत्म नहीं होती बात, ये बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके अंदर। तो बहुत सुंदर आज के, क्योंकि शायद बहुत से लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं होगा इसके अंदर, इसलिए नए जमाने के लोग इस ब्रेकअप को इस तरह से देखते हैं। इसलिए मैं सिर्फ 2 इसका नमूना करूँगा सामने, शायद ही सुनना होगा, जैसे प्रसून जोशी, उनका गीत है ब्रेक के बाद नाम की फिल्म आई थी 2010 में, तो उन्होंने उसमें गाना है उसके अंदर, तो बहुत सुंदर गाना था उसके उन्होंने कहा। तो धूप के मकान सा, सिर्फ उसके शब्द बताऊँ कि आपको कि कितनी ताजगी और कितना एक नयापन इस सोच का भी इसके अंदर है। तो जो ब्रेक के बाद क्या होती है जिंदगी, इसमें एक दूसरे से कहते हैं वो, बारिश है ख्यालों में सब भूल जाएगा, बारिश है ख्यालों में सब भूल जाएगा, रोशन रास्ता नया एक खुल जाएगा, बह जाएगा किनका किनका दिल का सिलसिला, चलो मिल जाएगा और एक हंसी का किला, चलो धूप के मकान सा है यह है सफर, ढलान सा यह मोड़ मेहरबान सा है।
तो धूप के मकान सा ये जो चीज वो कहते हैं, ये सफर जो है, तो उसके अंदर कोई यानी जो हम कहते हैं ना उसके अंदर बहुत टिकने वाली चीज शायद नहीं है। धूप आती जाती रहती है, धूप के मकान जैसा ये प्रेम का सफर है, लेकिन उसके बाद भी खत्म नहीं होती चीजें, नई नई चीजें शुरू होती है उसके अंदर। उसी बात को नई हिस्से में देखने वाला। और दूसरा जो है कामिल, इरशाद कामिल, उसने भी एक बहुत सुंदर 2005 में फिल्म है। 2000 के बाद जो नई चीज आई, शौचालय था नाम की एक बहुत सुंदर फिल्म आते हैं, शायद देखी थी तुमने। तो उसके अंदर वो जो है ना इस पीढ़ी की क्या कहते हैं उसको, उनके मन की बुनावट ऐसी होगी कि उसके अंदर एवरीथिंग इज कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज जनरेशन। बच्चों से कहे तुम क्या करना चाहते हो, मालूम नहीं। तुम्हारे बहुत देर से साथ में तुम दोनों कुछ सोचा है क्या, नहीं। प्रेम है क्या, पता नहीं। लिविंग चल रहा है आपका, लिविंग के बाद क्या करोगे, मालूम नहीं। वी डोंट नो, वी आर कंफ्यूज। ये उनकी जो आज नियति बन गई है। तो उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर साथ में एक बात ऐसी आती है कि बहुत सहजता से इस बात को स्वीकारते हैं कि जब टूट जाता है कोई रिश्ता तो बहुत अच्छे से देखते हैं। वो उन्होंने कहा था, अपने कार का बिल लगाया था कभी, आटे जो फल ठीक था वो ना फले तो ना सही, कुछ ना हुए तो ना सही, ना बने तो ना सही, ना मिले तो ना सही, कुछ ना रहे तो ना सही। इतनी मैच्योरिटी से अगर वो पीढ़ी देखती है संबंधों को, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है उसके अंदर। जैसे शब्द जैसी फिल्म जो बहुत सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कहते हैं कि जिस पर तो सिर्फ बहाना है, रोह तक साथ साथ जाना है। यह बात आज की फिल्मों में भी हो रही है। मुझे लगता है एक नजरिया रिश्तों को लेकर देखने का, और दूसरा मुझे लगता है कि अंत में ये कहूँगा मैं कि फिल्मों ने हमें देखने के लिए क्या जाता है। फिर से पहले वाले मुद्दे पर आता हूँ कि प्रार्थना गीत पर आता हूँ। जबकि मैं कहता हूँ मैं अपने आप को विवेकवादी मानता हूँ, निरीश्वरवादी मानता हूँ, लेकिन मैं अब जब सोचता हूँ करता है कि हिंदी फिल्मों में प्रार्थना गीत ये इतनी सुंदर मुकाम है जहाँ पर आप इतने देर तक भी रुके तो वो तो आपको अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि प्रार्थना गीत सबसे सुंदर जिसने लिखे हैं, तो जो निरीश्वरवादी लोग हैं या अज्ञेयवादी लोग हैं कि नहीं, हम नहीं जानते कि भैया वो ईश्वर है या नहीं, हम नहीं जानते इस बात को। ऐसा कहते कि हम विश्वास नहीं करते। तो आप जावेद अख्तर को देखो, गुलजार को देखो, सब लोगों ने जो कुछ लिखा है उसके अंदर तो बड़ी खास चीजें उसके अंदर। तो एक तो मुझे लगता है कि प्रार्थना की जरूरत, क्योंकि जब आदमी बहुत मुश्किल में होता है तो उसको अपनी अंदरूनी ताकत को अपने वो तो अंदर ही रहता है, सब जो ईश्वर है कुछ आपके अंदर है, आपकी ताकत को समेटना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ सहारे की जरूरत होती है, तो प्रार्थना की देता रहता है। तो आप सोचकर देखिए सुंदर सुंदर गाने कौन से हैं। तो एक ये लगा क्या ना, ओ पालना हारे निर्गुण और तनारे, तुम्हारे बिना हमारा कोई न कोनो नहीं, हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं। तो ये जो गाना है वो जावेद अख्तर लिखता है और वो बहुत खूबसूरती से लिखता है। और उसके बाद में अगर आप और कितना भी सोचते जाओ ना उसके अंदर, तो साहिर ने भी लिखा है। साहिर ने तो बहुत सुंदर ही उसके अंदर चीजें लिखी है उसके अंदर। तो उसने जो कहा है, हम दोनों फिल्म आपने सबने देखी हुई उसके अंदर, बहुत सुंदर उसने किया उसके अंदर कि सर ये तो उसके अंदर दो चीजें हैं कि अल्लाह के नाम में उन्होंने लिखा था, वो सारे जगह के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को दे दे ज्ञान। ये बहुत महत्व की बात है। आज जब इजराइल अटैक कर रहा है गाजा पर, जिसके पास ताकत है, अमेरिका वहां पर वेटो लाता है कि नहीं चले तो लड़ाई, तो इसलिए जिनके पास बल है उनके पास ज्ञान नहीं है, तो भगवान प्रार्थना करनी पड़ती है कि निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को दिए दो ज्ञान, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम। यही भावना साहिर में फिल्म ने भी कही थी, क्योंकि ये बहुत पुराना झगड़ा है। तो कहते हैं जिन्हें अदा की है तूने ताकत, जिन्हें अदा की है तूने ताकत, उन्हें हिदायत की रोशनी दे। तो यह जो बात बहुत सुंदरता से समझाते हैं, तो वही बात गुलजार साहब जो कहते हैं कि हमको मन की शक्ति देना, उसके अंदर गीत में जो कहते हैं, तो वो जो दूसरों के जैसे पहले खुद की जय करें। तो भारतीय संदर्भ जो है, भारतीयता जिसके अंदर है, दूसरों पर विजय नहीं करने, हमें पहले अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, यह बात गुलजार के अंदर परिभाषित करती है। या अभिलाष का जो गाना है इसके अंदर,
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास से कमजोर होना, वो उसका पूरा रिश्ता दुआ के 12 हाथ की वो प्रार्थना के साथ हमें मिलता है। तो ये सब जो गाने हैं, तो मुझे लगता है वहाँ से हम वो भरत व्यास का दुआ के 12 आँख का गाना हो, या अभी हमने कहा वैसा नया काबिल का हो, या जिसके अंदर कुन फाया कुन के अंदर मुझे लगता है कि कुन फाया कुन जब सुनते हैं वो पूरा, और सबसे मुझे अच्छी बात ये लगती है कि ये उस साल का सबसे हिट गाना था, वो हिट फिल्म का हिट गाना था। और उसके अंदर वो लोग जो आज की नई पीढ़ी है, जो उनको बताया जाता है तुम इस धर्म के हो, इस जाति के हो, उनको उकसाया जाता है, वो जब वो देखते हैं उनके साथ में, सूफी के साथ में वो भी नाचने लगते हैं, उसके अंदर उनके मन में वो बात बैठ जाती है। और उसके अंदर जो पूरा उस गाने की डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो ज्ञानेश्वर ने पसायदान में जो मांगा था उसमें, और कुन फाया कुन में एक ही बात कही है कि तुम और मैं, तुम और वो कोई अलग नहीं है, हम सब में एक ही सूत्र है, समान सूत्र है, जो है उसी को हम बरकरार रखेंगे, उसी का सम्मान करेंगे। यह सीख हमारे अंतर मन के धरातल तक पहुंचाने वाले ये फिल्मी गीत, और उस गीतों को और कलाओं का साज सजाकर हमारे सामने बहुत प्रभावी रूप से लाने वाली फिल्म है, इनके हम कृतज्ञ रहे। इतना ही करता हूँ, धन्यवाद। तो फिल्में और फिल्मी संगीत किस तरह से हमें और हमारे जीवन को प्रभावित करता है, ये सर ने काफ़ी आसान भाषा में हमें बताया। सर ने शुरू में जो कहा था कि जब वे छोटे थे तब ऐसा चलन नहीं था कि फिल्में देखना वगैरह अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। तो इस संदर्भ में एक छोटी सी मेरी भी याद है कि मैंने जैसे पहले बताया कि मेरे फादर मुझे ये फिल्म दिखाने ले गए थे, तो मेरी माँ बड़ी चिढ़ती थी, बोले बेटी को कैसा सिखा रहे हो, कैसी कैसी मूवीज़ दिखा रहे हो, ये सब मारपीट देखती है तो ऐसे ही बन जाएगी। तो मेरे पापा कहते थे कि ये मारपीट नहीं है, ये आर्ट है, तो इस आर्ट को वो अभी से समझेगी तो वो डेवलप होगा, उसमें कला को समझने का जो नज़रिया है वो उसमें आएगा। तो ये चीज़ मुझे आज याद आई। मूविंग अहेड, वी हैव विद अस श्री प्रफुल्ल शिलेदार जी। He is a noted Marathi poet. He has 4 poetry collections in Marathi, 2 in Hindi, 1 in Kannada, 5 translated books and 3 edited books. He has written prose on socio-literary issues. Since 2018, he is the editor of one of the oldest Marathi literary journal, Yugavani. His poems are translated into Indian languages including Hindi, English, Malayalam, Kannada, Telugu, Manipuri, Gujarati, Nepali, Odia, and some other foreign languages including Turkish and German. His poems are included in many poetry anthologies. He has read poetry in many literary festivals in India as well as abroad. He has translated Indian, American, European poetry into Marathi. His poetry and translations are honored by awards including Maharashtra State Award, Keshav Sut Award for Best Poetry Collection and Sahitya Akademi Translation Award 2018 by Sahitya Academy, New Delhi. So I would again request Shri Jaishankar ji to felicitate Prafulla sir. Now I would like to request Prafulla sir to share his views about cinema in his life. So, good evening everybody. ये मैं सिनेमोटा से तो काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ मैं, और आज पहली बार इस बाजू में बैठ के कुछ मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। जयशंकर जी ने आज्ञा की कि भाई आपको सिनेमा के बारे में कुछ बात कहनी है, तो एक मतलब सिनेमा के बारे में तो कभी बात की नहीं मैंने,
जिंदगी में पहली बार बात कर रहा हूँ और उसके लिए प्रसंग है वो बहुत ही हृदय प्रसंग मैं कहूँगा कि गोरा जी का जन्मदिन है। गोरा जी से मैं मिला भी हूँ, याद है छोटी रंतोली में रहते थे गोरा जी, उनके घर पर भी गया हूँ, उसके कोई रेफरेंसेस है वो भी बताऊँगा। लेकिन इस अवसर पर उनको, उनकी स्मृतियों को मैं अभिवादन करता हूँ। फिल्मों के बारे में जब कुछ कहना था तो एक बात बड़ी आसान कर दी जयशंकर जी ने और तायडे जी ने उधर से, कि विषय बड़ा सॉफ्ट कर दिया कि सिनेमा इन माय लाइफ। तो मेरा आधा टेंशन वहीं पे खत्म हो गया कि सिनेमा मेरे जीवन में सिनेमा कैसे आया। तो फिर मैं सोचने लगा, जैसे सोचने लगा तो ध्यान में आया कि भाई मैं जो बड़ा जो उम्र जैसे बढ़ती गई, द सेम स्टोरी लाइक यू ऑल्सो। इट्स नॉट दैट आई हैव एनी एक्सक्लूसिव स्टोरी, इट्स जस्ट लाइक यू। तो जीवन के हर मोड़ पे फिल्म मिलती ही गई कहीं ना कहीं, और हमेशा कॉन्स्टेंटली वी आर इन टच विथ सिनेमा। जिंदगी में यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबने कम से कम 1000 फिल्में देखी है एटलीस्ट। हाँ, वो कुछ लोगों ने ज्यादा भी देखी है, लेकिन 1000 फिल्में तो निश्चित रूप से देखी है, जिसमें से कुछ जहन में पक्की बैठी है और कुछ फिल्मों शायद हम भूल भी गए, लेकिन निश्चित रूप से देखिए। अब साल के 50 तो हम देखते ही यहीं पे देख रहे हैं, और बाहर भी और देखते हुए 40 साल अगर हम फिल्में देखते आ रहे हैं, तो 1000 को मैंने बड़ा आंकड़ा नहीं बताया, सिर्फ एहसास दिलाया कि हम फिल्मों से कितने करीब हैं और कितनी चीजें, और फिल्मों का हमारे जीवन पे प्रभाव भी बहुत होता है। और इतना ही नहीं तो हमारे जीवन का भी फिल्मों पे प्रभाव होता है। दोनों एक दूसरे को दे आर रेसिप्रोकल। जिस तरह से हमारी जिंदगी बदलती जाती है, फिल्मों की भाषा बदलती है। सरकार बदली तो फिल्म की भाषा बदलती है, ध्यान में रखो। हाँ, बाकी तो बात छोड़ दो। हाँ, लेकिन मनुष्य का जीवन भी जब बदलता है, जो जीवन में बदलाव आते हैं, तो एक नैरेटिव पैदा हो जाता है, अलग तरीके से करते हैं। तो मैं यूं ही, जैसा रविंद्र जी ने बात की, तो मैं याद कर रहा था कि कौन सी फिल्म मुझे सबसे पहले याद आई। ये बड़ा मजेदार प्रसंग है, आप सब लोग निश्चित रूप से हंसोगे। बहुत काफी छोटा, 62 का मेरा जन्म है, तो शायद मैं 8 साल का होगा, 8 साल हो गए। महल में हम रहते थे पुराने नागपुर में, तो इधर राजीव टॉकीज या नरसिंह टॉकीज, कहीं पे तो भी हम फिल्म देखने के लिए मेरी दादी मुझे लेती गई। दादी, माँ नहीं, दादी नहीं। और दादी की उम्र की कुछ औरतें और पोते कुछ, हमारा पोते की उम्र के 7-8 साल के कुछ बच्चे। और अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये पोते के लेवल के बच्चे और दादी, ये कॉम्बिनेशन कौन से फिल्म के लिए हो सकता है उस जमाने में। हाँ, तो मतलब 70-72 के आसपास की। तो वो फिल्म थी जय संतोषी माँ, और वहां पे जो माहौल देखा फिल्म का, अरे बाप रे, भयंकर। और लिटरली यानी ऐसे तो दंत कथाएं नहीं, मुझे जो भी याद है, लोग फूल साथ में, फूल एक छोटे से इसमें फूल लेके, अक्षत हल्दी कुमकुम लेके आते थे वहां पे। तो देशों, यानी ये फिल्मों का प्रभाव था अपने जीवन में। ये एक पहला अनुभव, एक जो याद आता है बहुत सारा। आगे फिर ये सिलसिला जारी रहा बहुत सारे। और मेरा जो घर था झंडा चौक में, मैं रहता था महल में, तो हमारे घर के बाजू में नटराज टॉकीज थी। तो शाम को गपशप करने के लिए हम वहां पे एक पुलिया पे हम बैठते थे गपशप। वो वहां के जो गेटकीपर थे वो हमारे दोस्त थे, नटराज टॉकीज की। तो कई बार फिल्में तो हाउसफुल जाती नहीं, आधी भी चलती, कभी पाव चलती, कभी 10% चलती, जो भी है। तो कई बार मन में आ गया तो हम सीधा नटराज टॉकीज में घुस जाते थे। जो फिल्म देखना देखो, आधा घंटा पौन घंटा फिल्म देखो, बाहर आ गए बस। तो इस तरह से ये सिलसिला चालू रहा। और इस तरह से किसने फिल्म देखी क्या पता नहीं, अलग अलग तरीके से मैंने फिल्में देखी। मैं नौकरी के लिए शेंदुरजना घाट नाम के गांव में गया था, अमरावती जिले में, एमपी बॉर्डर पर है। तो बैंक का मैनेजर था। बैंक के मैनेजर को थोड़ा सा एक वहां पे ये होता है, वजूद होता है उसका कुछ। तो वहां पर मैंने फिल्म वहां पे लगान जो देखी, तो 6 इंटरवल वाली लगान देखी मैंने वहां। मतलब पूरी टॉपिक की जो आपने बात की, तो
तो टूरिंग टॉकिंग में लगान लगी थी और बैंक के मैनेजर साहब आ रहे और हमारे बाकी बैंक का स्टाफ आ रहा है, तो सबके लिए कुर्सियां लगी थी, सामने तो दरिया बिछाई हुई थी और एक ही प्रोजेक्टर, डबल प्रोजेक्टर नहीं था, तो एक रील हो गया, रुक जाते थे, फिर इंटरवल हो जाता, बीच में हमको चाय वाय पिला देते थे। हाँ, तो ये 6 इंटरवल वाले लगा वहाँ पे पूरी टेंट में देखिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक फिल्म ने बहुत उसी उम्र में, कच्ची उम्र में बहुत प्रभाव किया। पहला एक पड़ाव में जिसको बोलूँगा, उस समय मैं औरंगाबाद में था, महाराष्ट्र में काफ़ी घूमा। तो शाहगंज नाम का जो पुराना इलाका है, वहाँ पे फिल्म देखने के लिए मैं और मेरा दोस्त गए। थोड़े से लेट हुए थे, लेकिन टिकट तो सामने का ही था। फिल्म थिएटर के अंदर गए, अंदर जाने के बाद चेयर पर बैठ गए और एक गाना शुरू हो गया फिल्म का। वो फिल्म थी विमल राय की, सलील चौधरी का संगीत था, स्टोरी ऋत्विक घटक की थी और डायलॉग राजेंद्र सिंह बेदी के थे। आपके लिए क्विज है, बताइए कौन सी फिल्म। और अंदर जाने के बाद में पहला गाना शुरू हुआ, जुल्मी संग आंख लड़ी। अरे बाप रे, ऐसे रोंगटे आ गए मेरे आंख में, सच में। ओहो, वो क्या फिल्म थी। हाँ, अंदर जाके ऐसा बैठा नहीं था, ऐसा बाहर से आंखें, मतलब अंदर अंधेरा, ऐसी चेयर जो भी है वहां बैठ गया और वैजयंती माला, दिलीप कुमार, एक के बाद एक, और गाने की लड़ियां खुल रही है। मधुमती, अरे बाप। तो ये जो फिल्म का जो पहला एक लक्षणीय जिसको हम कहेंगे वो अनुभव था। डायरेक्टर तो अच्छी है, सवाल ही नहीं, विमल राय कोई। तो ये फिल्म के एक जादू जैसा हो गया था उस फिल्म का। संगीत का, जैसा संगीत का जिक्र रविंद्र जी ने किया है, फिर उसी सिलसिले में ये सब जो एक पीढ़ी की जो फिल्म है, मतलब जैसा कि राज कपूर हो गए, देवानंद है, दिलीप कुमार, ये सब ये पूरी बहुत सारी फिल्में देखते गए, उनकी सिनेमाटोग्राफी देखते गए, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में थी। और दूसरा जो पड़ाव आया, फिर वो उसी तरह मैं चौंक गया दूसरे पड़ाव में, वो था प्यासा का। गुरुदत्त की फिल्म जब मैंने प्यासा देखी, जला दो जला दो, अरे बाप। तो उस समय भी उतनी ही, मतलब मैं चौंक गया, फिल्म की भाषा क्या हो सकती है। गुरुदत्त पर एक बहुत अच्छी किताब, हमारे एक वरिष्ठ मित्र है अरुण खोपकर, तो उन्होंने वो गुरुदत्त 3 अंक की शोकांतिका नाम से एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी किताब लिखी, बहुत सारे फोटोग्राफ से, वो खुद फिल्म प्रोड्यूसर है। उसको अभी वो हिंदी में भी आई है, एक गुरुदत्त 3 अंक की शोकांतिका। हाँ, तो उस फिल्म का एक बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। उसके बाद में फिर ये, मतलब ये सिलसिला चालू ही है। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि नागपुर से मैं अमरावती में शिफ्ट हो गया, ये बीच में। तो अमरावती में मैं गया 83 में। 83 में जाने के बाद, अब यहाँ 83 में जाने से पहले सिनेमोटा यहाँ पे स्थापना हो चुकी थी, गोरा जी भी थे उस वक्त। और मेरे याद से सदर में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के हॉल में, वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे स्क्रीनिंग होती थी, वहाँ की स्क्रीनिंग में अटेंड करता था। हाँ, ऐसा सदर में, हाँ, करेक्ट। तो वो वहाँ के स्क्रीनिंग अटेंड करता था। और कुछ फेस्टिवल भी हुए थे हमारे रीजेंट में होते थे, बराबर। हाँ, तो वो भी अटेंड किए हैं। हाँ, बराबर, वो वहाँ देखते थे। तो ये मतलब एक छोटे ग्रूमिंग एक तरह से चालू हो गया था। और अमरावती जाने के बाद में एक हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त बम्बई पूना से आए, उनका नाम था मिलिंद चंपानेरकर, जो बहुत अच्छे ट्रांसलेटर है, बहुत अच्छे लेखक हैं। तो उस वक्त मतलब युवावस्था थी, मतलब उम्र क्या होगी, 22-23 की उम्र होगी सब लोगों की उस समय। तो वो फिल्म सोसाइटी मूवमेंट से काफी जुड़े थे। और मैं नागपुर से और अमरावती गया। अमरावती के हमारे कुछ दोस्त थे और मिलिंद आ गया, मिलिंद ने थोड़ा डायरेक्शन दिया, तो हमने वहाँ पे फिल्म सोसाइटी की स्थापना की, अनंकित फिल्म सोसाइटी 1984 में। और ये फिल्म सोसाइटी केवल हमने स्थापना नहीं की,
तो वहाँ पे रेगुलर स्क्रीनिंग हमने शुरू की है। और मुझे तो याद है वहाँ पर अनंकित में जो हमने ये किया, तो राजा हरिश्चंद्र भी हमने वहाँ पे दिखाई है। राजा हरिश्चंद्र से मतलब वो बिल्कुल बहुत मेथोडिकल था वो। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हमने वहाँ पे खुद मंगा के देखी। दूसरी बात ये, सोसाइटी का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, उसको पब्लिक ट्रस्ट करके भी करवाया। उसके बाद हमने FFSI के साथ में रजिस्ट्रेशन किया। अमृत गांजा वहाँ तब सेक्रेटरी भी थे वहाँ पे। तो मैं बम्बई जाके अमृत जी से मिला भी हूँ। एक बार मैं बम्बई गया था, तो हमारी फिल्म सोसाइटी के बहाने मैं आनंद पटवर्धन के यहाँ भी गया था। तो आनंद पटवर्धन ने जो भिवंडी की जो दंगल हुई थी, उस पर उनकी एक फिल्म राइट पे, तो वो फिल्म का डब्बा उनके घर से लेके आया था। अच्छा, ये फिल्म चलाना बोले तो आप में से बहुत लोगों को पता है। अच्छा, हमने आर्काइव पे फिल्म आर्काइव की मेंबरशिप ले ली थी और FFSI की भी मेंबरशिप ले ली थी। तो फिल्म जब आती थी तो फिल्म के डब्बे आते थे, वो आते थे रेलवे के पार्सल से, और बिल्टी हमारे घर में आती थी। हाँ, तो जाके फिर पार्सल ऑफिस जाओ, उनका डैमेज भरो, वो फिल्म छुड़ाओ। उसके बाद में 16 mm का प्रोजेक्टर वो मैनेज करो, 16 mm का प्रोजेक्टर पे वो 16 mm की फिल्म दिखाना, और फिर उसको फिर से पार्सल करके भेजना। ये सब चीजें मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में हमने वहाँ पे करीब 4 से 5 साल तक ये पूरी एक्टिविटी हमने वहाँ पे की। लेकिन उसमें एक घटना का मैं खास करके जिक्र करूंगा कि गोविंद निहलानी जी की आघात नाम की जो फिल्म है, आप लोगों को याद है क्या मुझे पता नहीं, कि जो वर्कर्स मूवमेंट पे वर्कर्स मूवमेंट स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक को फोड़ने के लिए क्या क्या किस तरह से पॉलिटिक्स चलता है, जिसकी स्टोरी और स्क्रिप्ट जो है वो विजय तेंदुलकर की थी, और उसमें ओमपुरी वगैरह बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार थे उसमें। तो ये आघात का प्रीमियर हमने अमरावती में किया, और उस प्रीमियर के लिए गोविंद निहलानी और विजय तेंदुलकर दोनों वहां अमरावती में आए थे। और हमारे फिल्म सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे वो एडवोकेट भीमराव देशपांडे थे, जो बिल्कुल अंबादेवी का जो रास्ता है वहीं पर रहते थे। भीमराव जी के यहाँ दोनों रुके घर में, और रेलवे से आए, 2 दिन वहां पे थे। मतलब आज आए तो एक दिन हमने सुबह स्क्रीनिंग किया, स्क्रीनिंग करने के बाद शाम को विजय तेंदुलकर और गोविंद निहलानी के साथ में डिस्कशन ये फिल्म का। तो एक कल्चर डेवलप करने का जो प्रयास मतलब गोरा जी वो अमरावती में पैरेलल इस तरह से शुरू किया, और 2 दिन गोविंद निहलानी और तेंदुलकर जी के साथ हम जो क्लोज रहे और हमारी जो बातचीत हुई, गपशप हुई, ऐसे लम्हों का भी बहुत प्रभाव अपने पर्सनैलिटी पर होता है निश्चित रूप से। उस समय जो भी हमने किया वो बहुत याद। और फिर उसके बाद में एक सिलसिला शुरू हो गया, समय भी मतलब 80 के बाद का समय आया तो न्यू वेव सिनेमा आ गया। फ्रांस में न्यू वेव 70 के बाद आया, अपने यहाँ 80 के बाद में आया। तो 80 के बाद में आया तो फिर पूरी लाइन लग गई न्यू वेव सिनेमा की। तो उसमें से मेरे ख्याल से तो करीब करीब सभी फिल्में देख ली, क्योंकि न्यू वेव सिनेमा की जो भी फिल्में थी, यानी अर्ध सत्य हो गया, आक्रोश हो गया, भूमिका हो गया, निशांत है, इस तरह से 27 डाउन था, चक्र था, ये बहुत सारी फिल्में। तो ये सब फिल्में थिएटर में लगती थी। थिएटर में लग के भले ही शो उसके कम होते थे, लेकिन फिल्म में जाके वो पूरी न्यू वेव देखने के बाद में उसका एक अलग। और ये जो फिल्में थी वो पूरे ठेठ समाज से जुड़ी हुई थी, जो समाज का जो अंतरंग है वो, और बहुत सारे जो सामाजिक हमारी समस्या है। तार जैसी एक फिल्म बीच आई थी, वो भी अभी गौतम घोष की थी शायद, बराबर। तो इस तरह से ये फिल्में हमारी एक समाज का वास्तव हमारे सामने रखने का काम कर रही थी, हमारे आंखें खोलने का काम कर रही थी, हमको और समृद्ध और हमको और सतर्क बनाने का काम ये न्यू वेव वाली कर रही थी। उस समय गर्म हवा भी देखी MS सत्यू की। तो ये पूरा शहीद मिर्जा की फिल्में बाद में आई, फिर एक करके ये सब सिलसिला चालू। और साथ में जो विदेशी फिल्में हैं उसको भी एक फिल्म सोसाइटी के कारण एक्सेस मिला, क्योंकि विदेशी फिल्में थिएटर में जो लगती थी वो अलग किस्म की लगती थी। मैकेनॉस गोल्ड वो भी देखी, हाँ। बेनर देखी, बेनर तो कमाल की फिल्म थी, आपको याद होगा शायद। अगर बड़े स्क्रीन पे अगर आप बेनर देखोगे, नथिंग लाइक दैट, 10 कमांडमेंट्स वगैरह, ये जो सब चीजें बड़े एक बिग शो। लेकिन इनसे हटके जो फिल्में विदेश में बनती थी
वो केवल और केवल फिल्म सोसाइटी के कारण यहाँ पे देखने की मिली। फिल्म सोसाइटी में भले ही हम कई बार हम सोचते हैं, बातें करते हैं कि भाई 10 लोग आते हैं, कभी 12-15 लोग आएंगे, कभी 7-8 लोगों में स्क्रीनिंग होता है, लेकिन इतने सालों से गोरा जी ने जो काम शुरू किया वो आज 40 साल तक के हम अगर कर रहे हैं तो ये बात भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि एक छोटा सा दिया है जो किसी ने बुझने नहीं दिया। ये सबसे बड़ी बात क्या है सिनेमुंटास की, और आगे पर भी हूं मैं, ऐसा मैं मानता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ये इस अंधेरे में एक दीपक जलाए रखना, चकाचौंध तो बहुत है, बाहर जाओ 100 करोड़ का क्लब है, 200 वाला क्लब है, 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है, उसको कोई गिनती नहीं उसकी, लेकिन वो जो चकाचौंध है वो अपने कोई एनलाइटनमेंट करने की, अत्यदीप भाव जो बोलते हैं ना, अंदर में कुछ जोत जगाने वाला काम करने वाली फिल्में नहीं है वो। और इसका हमारा जो ये करने के पीछे का हेतु है वो ही पूरा अलग है। तो इसको अखंड रूप से चलते रहना ये बहुत बड़ी बात है, और इसलिए ये आज के कार्यक्रम का ये बहुत महत्व है। वर्ल्ड सिनेमा हो गया है, और उसके बाद में 2-3 बातें कुछ आपको अभी यहाँ पे मैं और रखूंगा मुद्दे कि फिल्मों की व्याख्या भी अभी बदल गई है मेरे लिहाज से। जैसा मैंने बोला कि 16 mm की फिल्म लाना, प्रोजेक्ट लाना अभी नहीं करना पड़ता। अभी एक लैपटॉप सामने रखो, आपके सामने 100, 200, 500, 1000 फिल्में आपके लैपटॉप में रहेगी, हार्ड डिस्क में रहेगी। हाँ, अभी वो गए, पूरा चला ही गया, वो पूरा चेंज हो गया। अच्छा, केवल उतना चेंज हुआ ऐसा नहीं है, तो फिल्म अलग अलग फॉर्म में आने लगी। हाँ, यानी आपके मोबाइल पे आप फिल्म देख सकते हो, फिल्म का जो अवधि था वो घट गया। हाँ, टोटल अगर आप देखोगे तो घट गया है। लंबी फिल्में 3-3.25 घंटे वाली फिल्में तो भूल ही जाओ, अभी 1.25 घंटा 1.5 घंटे से फिल्में चालू होती, शॉर्ट फिल्में बनने लगी। शॉर्ट फिल्म ये बहुत बड़ा माध्यम है। नेटफ्लिक्स पे सीरियल आने लगे हैं, हाँ, फिल्मों के, उसको टुकड़े टुकड़े में 20-20 मिनट के टुकड़ों में देंगे आपको। और एक बहुत खास, मैं कवि हूँ इसलिए खास करके बोलता हूँ कि पोएट्री पे बहुत सारी फिल्में बन रही है। जर्मनी में जेब्रा पोएट्री क्लब है, हाँ, वहाँ पे उनका, आप उनको फेसबुक से भी फॉलो कर सकते हो। कविताओं पर इतनी सुंदर फिल्में बनाते हैं, और उसकी कई बार उनके फेस्टिवल्स भी होते हैं, पोएट्री फेस्टिवल्स। तो भारत में भी कुछ ऐसी कोशिशें हुई है, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन एक कविता पे छोटी, एक 3 मिनट की, 4 मिनट की एक फिल्म बनाना, और पोएट्री जितनी इंटेंस है उतनी ही इंटेंस करना, फिल्म बनाना, ये भी है। मतलब ये जो रूप है, सिनेमा का रूप है, वो बहुत अलग अलग तरह से बदला है। ये भी, इसको भी, ये बात को भी हमने ध्यान में लेना बहुत जरूरी है। केवल जो सेल्यूलॉइड में फिल्म थी वही फिल्म थी ऐसी बात नहीं है। छोटे छोटे क्षण हमारे जीवन में जो आते हैं, छोटा सा रील बनाते हैं, अभी रील तो कितने सेकंड की होती है, 30 सेकंड की, क्या वो फिल्म नहीं है? हालांकि उसमें बकवास बहुत होती है, लेकिन अच्छी रील भी बना सकते हैं आप। अगर आप में उतनी पावर है, उतनी आप में सोच है, तो निश्चित रूप से आप अच्छी रील, मतलब निश्चित सामने वाले को आप ये कर सकते हो। मतलब ये देखो, उसकी जो एक लेंथ जो है, कितना बदलाव आ गया, 3-3.25 घंटे से लेकर 30 सेकंड तक, कितना, ये सब ये फिल्म का रूप है। आप परहेज मत कीजिए किसी भी रूप से, ये विजुअल है, ये जीवन का दर्शन है। हम फिल्म देखते, मैं क्या मानता हूँ, फिल्म को क्या देखता हूँ कि फिल्म जो है वो अपने को अलग जीवन बताती है। मेरा अपना एक जीवन है, वो मैं जीता हूं, हर कोई, लेकिन क्या मैं किसी और के, आपके जीवन में जा सकता हूं, समझ सकता हूं, आपके जीवन में जा सकता हूं कि क्या क्या चल रहा है? अच्छा, जीवन में छोड़ो, आपके भीतर क्या चल रहा है, क्या मैं ये है, मुझमें शक्ति है, नहीं है? तो ये जो दरवाजा है वो फिल्म खोल के देती है। तो फिल्म को इस अंदाज से भी देखना चाहिए कि इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू अनदर लाइफ, दूसरे जीवन में हम जा सकते हैं। वो हम जीते हैं 2.5 घंटे में, 2 घंटे, 1.25 घंटे, जो भी समय है, जो टाइम एंड स्पेस पूरी अलग होती है फिल्म की। बहुत गंभीरता से देखो उसकी तरफ, स्पेस पूरी, जब खास करके जब हम वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं
वर्ल्ड सिनेमा तो छोड़ो, अपने भाषा का भी सिनेमा ले लो, मराठी का भी सिनेमा ले लो या भारतीय सिनेमा ले लो, कोई भी स्पेस है वो पूरी अलग होती है, पूरा एक अलग दृश्य हमको दिखता है। केरल की फिल्में लीजिए, बंगाल की फिल्में लीजिए, मणिपुर की फिल्में लीजिए। मणिपुर में एक बहुत, अभी मैं बीच में मणिपुर गया था ये दंगल के पहले, तो वहाँ के एक फिल्म डायरेक्टर से मिला मैं, वो वहाँ के फिल्म इंस्टीट्यूट में भी गया था। मणिपुर का क्या फिल्म का सीन क्या है वो सब देख के आया वहाँ पे। तो एक बहुत प्रतिभाशाली डायरेक्टर है, उन्होंने वहाँ पे एक झील है, लोकटाक झील, तो लोकटाक पे ऊपर उन्होंने एक फिल्म बनाई है वहाँ की एक लोक कथा को लेके, और टोटली उनका आज के जो मणिपुर के लोगों के प्रॉब्लम से उसको रिलेट करती है। वो बीच में मूवी पे वो फिल्म आई थी, मूवी जो ऐप है उस पे। तो मतलब हर जगह पे फिल्में बनाना शुरू है, हर जगह। एक बीच में एक बार मैं स्लोवाकिया जैसे देश में गया था, वो साल में वहां 10 से ज्यादा फिल्म नहीं बनती पूरा, तो 10 से ज्यादा फिल्म नहीं बनती, इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई वहां पे। लेकिन जो भी फिल्में बनती हैं वो बहुत क्लासिक फिल्म बनती है। अब कई बार लोक संख्या कम होती है वहां की, तो आर्टिस्ट कम होते हैं, जो एक्टर्स लोग कम होते हैं, और ये जो है फिल्म जो है वो केवल, कई बार मैं सोचता हूँ कि ये कौन सी कला है, क्या ये परफॉर्मिंग आर्ट है या फाइन आर्ट है। तो परफॉर्म तो करना ही पड़ता है फिल्म में। परफॉर्मिंग आर्ट यानी जैसा आप बोलेंगे कि संगीत, शास्त्रीय संगीत की बैठक होगी है, फिर परफॉर्मिंग आर्ट, उसका परफॉर्मेंस हो गया, कला खत्म होगी वहीं पे। नाटक हुआ, परफॉर्मिंग आर्ट है। लेकिन कोई पेंटिंग किया, वो फाइन आर्ट में जाता है। साहित्य, आपकी कहानी की किताब है, फाइन आर्ट में जाता है। तो सिनेमा क्या है? तो सिनेमा ये दोनों का एक अजीब सा मिश्रण है। भरत मुनि ने 64 कलाएं कुछ लिख के रखी, ये तो 65वीं कला है। सभी कलाओं का उसमें संगम है। हम उसकी सीमा जो है, परफॉर्मिंग हो या कला, ये हो, फाइन आर्ट हो, वो सब लांग के जाती है और हमारे भीतर तक वो सीमा ये जाती है। इसमें मैं खास करके ये सोचता हूं कि भाई एज ए पोएट या एज ए राइटर, या ये दोनों चीजें छोड़ दो, एज ए सेंसिटिव पर्सन फिल्म मुझे क्या देती है? तो फिल्म मुझे डेफिनेटली ये देती है, अच्छी फिल्में अगर हम देखने लगे तो बेहतर मनुष्य होने की संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, इससे हमें उजागर करती है। यू कैन बी ए बेटर मैन फिल्म देख के, कि इसमें क्या, और हमारे जीवन के बहुत सारे प्रसंग जो हमारे जीवन में नहीं आए वो हम उसको अनुभव कर सकते हैं। उस फिल्म में हम जा सकते हैं। फिल्म का जो समय होता है, वहां का जो टाइम जो है वो अलग अलग लेवल का होता है। मतलब एक फिल्म में एक समय रहता है, जैसा अभी ये मैंने बेनहर का उल्लेख किया, तो बेनहर का जो टाइम है वो अलग टाइम है। बेनहर बनी कब? तो अभी एक 30 साल 40 साल पहले बनी होगी, तो बेनहर बनने का समय अलग है, और बेनहर को मैं देख रहा हूं आज 2023 में, तो ये समय अलग है। मतलब 3 समय एक फिल्म के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म के अंदर की जो कथा वस्तु है उसका समय, दूसरी बात जो बनी उस समय, जो उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया, जिस तरह से लिया, वो एक समय, और आज अगर मैं उससे रूबरू हो रहा हूं, उसे देख रहा हूं और उसको अनुभव करके मैं अगर कुछ अपनी बात सोच रहा हूं, तो वो एक तीसरा समय। तो इस तरह के अलग अलग टाइम का एक कैमोफ्लेज है वहां। उसी तरह स्पेस का भी है। तो टाइम एंड स्पेस का एक बड़ा एक अनोखा अनुभव हमें फिल्मों के माध्यम से आता है, और ये जो अनुभव है ये हमें निश्चित रूप से एक अंदर से एनरिच करता है। खास करके जब कोई भी क्रिएटिव पर्सन है, भले वो पेंटर रहे या गायक रहे या लेखक रहे, उसको तो फिल्मों से बहुत सारी चीजें मिलती है। फिल्मों में क्लोजअप जिस तरह से लिया जाता है, क्या वो अपने लेखन में ला नहीं सकता, आ नहीं सकता? ये बात है। लॉन्ग शॉट जिस तरह से लिया जाता है, कहानियां तो कई कहानियां तो मैंने पढ़ी जो पूरी फिल्म के अंदाज में जाती है। लॉन्ग शॉट का डिस्क्रिप्शन आता है, खास करके उपन्यासों में कई बार देखा।
कि बहुत से पैराग्राफ लगता है कि एज इफ लेखक के दिमाग में कोई फिल्म चल रही है। तो हमें एक दृष्टि देती है, केवल जो आपको दिखता है उसके तरफ देखने के लिए उसके भीतर की कई परतें खुलते जाती है, बहुत फाइनल लेवल्स हमको जाती है। और जितना हम गंभीरता से देखेंगे, जितना डीप में जाके देखेंगे, उतना हमें बहुत सारी चीज़ें मिलते जाती है। बहुत सारी चीज़ों का मैंने यहाँ पे उल्लेख नहीं किया मैंने कि क्या क्या और मिल सकता है। मुझे लगता है हम लोग ऑल ऑफ अस आर फॉर्चुनेट यहाँ पे जो बैठे हुए, क्योंकि हम सीरियस फिल्म के साथ जुड़े हैं। तो सीरियस फिल्म के साथ जुड़े होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो रियली यानी अपने आप को भाग्यशाली समझो कि जो बेहतर चीज़ें हैं दुनिया की वो हम देख रहे हैं, और इससे एक ही बात लेना है कि हमें और बेहतर इंसान होना है। और ये मूवमेंट का जो शुरुआत गोरा जी ने की, उनके जन्मदिन के अवसर पर मेरे जैसे एक सामान्य दर्शक को आपने जो एक बहुमान दिया कि यहाँ पे आके अपनी बात रखने का, इसलिए मैं सिनेमोग्राफ का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। मेरी बात में यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Now I would like to invite Shri Tapas Saha to present vote of thanks. Good evening. Today's session, Cinema in My Life, organized in memory of Gaura Ganguly, our founder member, has come to a last leg now. So I take the privilege to propose vote of thanks on this occasion. As you all know, for last few years, Cinemontage is struggling to survive under the changed socio-economic conditions of the society. It has been possible to remain afloat and survive due to dedicated service of all our members and well-wishers. All of them deserve our thanks and gratitude. But first of all, I would like to thank Mr. Praful Chiledar. Today he has appeared here as a poet and translator, and Mr. Ravindra Rukmini Pandharina, more popular as an activist, for agreeing to assume the role of today's guest lecturer. I hope everyone has enjoyed their address, and it was really enlightening to all of us, their speech. Thank you, both of you, sir. Today's function is a small but very important for us, because we all are emotionally connected with Gauranga. He was our mentor. He mobilized people behind the Cinemontage, which stands today. It is not only today's function, but the film screening throughout the year is being conducted in this room with all modern facilities. It has been possible only due to the support and patronization of the staff and management of Bengali Education Society. We have no words to express our gratitude to the staff and management of Bengali Education Society. Before I conclude, we must express our gratefulness to Ms. Jogita Chokale for agreeing to take the whole responsibility to conduct today's program. Finally, my sincere thanks to all members of audience who are present here on this Monday evening, defying the assembly crowd of the city and also probably sacrificing some important personal assignment.
We look forward to your support in all our future endeavors. And it is you only you, with whose support we are able to come up to this far. With this, I conclude today's session. Thank you. I have request all our audience and members to join for a cup of tea and snacks. Thank you. In this background, I take some photos. यहाँ बड़ा मुश्किल है तभी हम अपना अपनी काफी सारे करते हैं अपने यहाँ पर ऑफिस से आए बहुत बड़ी बात है